simply converting the value of the calculation into a category A or B. This type of equation जो कि simple हमने एक if statement के साथ लिखी है, it is known as the pure linear transform. ट्रांसफॉर्म जब भी आप एक चीज को दूसरे में लेके जाते हैं. So what I have done is converted the output of the linear regression. ये हमने शुरू उससे किया था. We got the output of linear regression in the form of a real number and using the pure linear function जो अभी मैंने लिखा है, we have converted it into a discrete class either A or B. So this सर ये has प्योर लीनियर ट्रांसफॉर्म को दोबारा बताना, ये क्या आपने भी क्या बताया ऊपर से? टॉप पे मैं इसको लेके गया था जस्ट टू शो यू के आउटपुट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन इज रियल नंबर. मैंने इस पे एक ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है विच हैज कन्वर्टेड इट इनटू ए डिस्क्रीट आउटपुट आइदर क्लास ए और क्लास बी, आइदर कैट्स और डॉग्स, आइदर सिटोजा फ्लावर और द वर्जेनिका फ्लावर. कैसे? If the answer of this calculation is, ये एग्जाम्पल है, 0.5 से बड़ा है, then it is A, else it is B. Now it will depend upon the multiplication of all these features with the weights and addition of the bias term that we will get the answer. जो f of z या f of y है, this is sometimes also written as the z. So Z is the transformation of answer of the linear regression into a discrete class. Now sometimes this is good, sometimes we get into the problems of ranges कि जिस तरह 0.5 तो हमने कर लिया कि if the answer was between 0 to 1, जो हमारे पास y का आंसर आया. If the answer is not as simple as that, then we have another function in which what we will do is that z is equal to 1 over 1 plus e to the power negative of the value that we got, negative y hat. जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो you will see x axis पे we have the output value, ये हमारे पास आई y hat. So x axis denotes the y hat and this z is the output. What happens is if we get value less than 0.5, let's suppose this is 0.5. अगर इससे नीचे है then it is class B. अगर इससे ऊपर है then it is class A. Do you agree or not agree? Negative नहीं है. We have just divided this thing on the basis of 0.5 that if it is below 0.5, y इस तरफ को increase कर रहा है. If it is below 0.5, it is B. If it is greater than 0.5, it is A. This thing sometimes becomes
confusing. Okay, what if ये 0.5 है, this is 0, this is 1, and we will have the graduations on this axis also. Instead of using this simple rule, having a threshold value and then converting it into the classes, what we do is provide the answer into this equation, and we shall see that the resulting graph, ये z की values हैं. The resulting graph, let me erase everything else so that you can clearly see it. इस पर dotted line भी किसी तरह से लगती थी. I've forgotten that. Okay, never mind. So if this is 0.5, if we use this function, it is going to give us a very important thing. When this y is 0, what will happen? Calculate करें. If y hat is 0, ये class नहीं है, this is the answer of this equation. I'm repeating it time and again. Then ये सर 0.5 आ जाएगी. Yes, 1 over 1 plus e to the power 0 is 1. 0, 1, 2. So the answer will be 0.5. So when the y is 0, y 0 होगा, z will be at 0.5. Let us एक दफा इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं. Let me clearly draw it so that this is y hat 0 and -1, -2 all the way to the negative. और z की वैल्यूज अब मैं origin से ऊपर ले जाता हूँ. Let's have it like this. This is 0. This is 0.5. And this is 1. So these are the values of z. So when y hat is exactly 0, we will get a graph which will go like this. When z is, एक मिनट जरा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा. Okay. When y hat is less than 0, you will get this thing getting closer and closer to the 0. If y hat is greater than 0, you will get this line closer and closer to 1. This is z. So z will be ranging between 0 and 1. 0.5 पे it has a significance, जो भी हमने यहाँ ये देख ली है. When y hat is 0, z is going to be 0.5. इसे आपने याद रखना because this is something we are going to use in back propagation also. So what this tells us is that
everything which is below 0.5 of the Z is class B. यही वाली हमने जो की थी. Everything above it is A, everything below it is B. This again is the transformation of the predicted value of linear regression into a discrete class A or B. When y is 0, जब इस calculation का आंसर 0 आएगा, then we are going to be at a confusion point कि ना ये A है ना ये B है. अगर ये 0.5 से थोड़ा सा भी नीचे होगा Z, we will classify it as class B. अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर होगा, we will classify it as class A. Now, the difference between the first example and this is that यहाँ हमने threshold देखा, एक 0.5 था, this could be any value. अब ये lower end पे भी कहीं भी जा सकता है, there is no limit of the range. और positive पे भी कहीं भी जा सकता है, there is no limit of the range. 0.5 दरमियान में है, ऊपर की value could go up to thousands, नीचे की value could go up to negative thousands, infinity. There is no restriction of the outcome. Whereas in this transform, what happens is whatever is the value of y, whatever you get as an answer of this prediction, the z will range between 1 maximum and 0. So it will be showing you an asymptote जो 0 को approximate करेगा एक तरफ, and it will go very very close to 1 but never becoming 1 on the other end. This curve allows us to restrict the space of z between 0 and 1. जो हमारे पास otherwise ये y है, इसे हम 0 1 में restrict नहीं कर सकते. I'll just show you examples in MATLAB and then you will understand what is meant by this. But ये जो z है, we have seen that it will stay between 0 and 1. So it is bound between 0 and 1, asymptote है. Now if you closely look at the shape of this curve, this is the famous sigmoid transform. Sigmoid कहते हैं snake like. So sigmoid transform allows us to transform the prediction into a range of 0 and 1. Then sometimes this is not good enough, and what we have to do is convert the z into a more definite range. यहाँ हमने 0.5 को कहा था, एक confusing point आ जाता है. This is sometimes not considered a very useful thing. So what we do is broaden this range even further. This is your y hat, and y hat is 0, and this is 0 origin. ये आपके पास आ गया z. So from 0 till 1 and 0 till -1. Instead of having 0.5 as the arbitrary point, हमने कर दिया है 1 and -1 as the range, and 0 now becomes the arbitrary point. The calculation is slightly different. Now this z is going to be equal to e to the power y hat minus
e to the power minus y hat divided by e to the power y hat plus e to the power minus y hat. इसको जरा सुकून से लिख लेते हैं because you should not confuse it. This thing you will see will create again an asymptote. Agar y is 0, what will be the answer in this case? जीरो होगा सर. 0 sir. If y is 0, then in this case it will be 0. If y is 1, what will be the answer? 1. पक्की बात है? सर अंदाजा नहीं सर, श्योर नहीं है. Okay, so we will see that as the value of y gets greater than 0, you will start getting the answer like this. It will get close to 1 but not exactly 1. ये asymptote है. And again, नीचे भी ये इस तरह से चलता जाएगा. Now the interesting thing is that सर ये ग्राफ जब y 0 होगा कि y 0 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं आप? y जब 0 होगा, ये वाला, जी. this y hat, अच्छा. when this is 0, e raised by 0 is 1, minus e raised by minus 0, 1, 1 minus 1, 0, 0 over 2 is 0. तो जब ये 0 होगा, आंसर 0 आएगा. अब अगर ये 1 हो जाता है, तो what will happen? e raised power 1 minus e raised power minus 1. ये कैलकुलेट करें ना जरा. Sir, So you will see- 0.761. Yes, 0. 761. Very good. So when y is equal to 1, it will quickly get you to 0.76, which is a higher value. अब y को कैलकुलेट करके देखें -1 पे, तब क्या आंसर आता है? सर ये मैंने आपको होल का आंसर बताया है जो आपने z लिखा हुआ है. जी जी, मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू. z यहाँ आ गया ना, 0.76 आया. जी मजे सर. की ये बात है, जब आप इसको -1 पे देखेंगे तो द आंसर विल जस्ट फ्लिप. करके देख लें खुद इसको. मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए. सर तब भी 0.76 ही होगा. कंफर्म करें. गौर से देख लें, y hat is -1. सर नेगेटिव 0.761. एग्जैक्टली, -0.76. तो अगर y 1 है तो ये पॉजिटिव 0.76, अगर y -1 है तो नेगेटिव. सिर्फ अगर हम इसी तरह 2 पे कैलकुलेट करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी. आई थिंक इट इज अराउंड 0.88 के करीब है. -2 पे करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा. द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू मस्ट नोट, ये जो मैंने ऊपर बनाया सिग्मोइड, एंड दिस थिंग, दिस इज द tan hyperbolic function, tan h of the y hat. इन दोनों की शक्ल जो है, दिस इज स्नेक लाइक. बोथ बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सिग्मोइड फंक्शंस. दोनों की शक्ल स्नेक लाइक है. द डिफरेंस इज दैट इफ यू टॉक अबाउट द प्योर लिनियर, इससे अगर आप कभी ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी दैट इट विल बी लाइक दिस. It will pass through the origin
और एक स्ट्रेट लाइन ये चलती जाएगी और चलती जाएगी. Whereas the sigmoid will start from 1 and become very very close to 0, never touch it. ये कभी भी नेगेटिव में आंसर आपको नहीं देगा. Whereas the tan hyperbolic, this will start from close to 1 और -1 के करीब करीब पहुंच जाएगा. इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर्स दोनों आते हैं. सो लुकिंग एट दीज 3 ग्राफ्स, ये प्योर लिनियर का, दिस वाज सिग्मॉइड, एंड देन वी हैव द tan hyperbolic. वी कैन से दैट ओनली सिग्मॉइड, ये एक लाइन में लिखने लगा हूं, ये तो खैर ये हो गया था, ओनली sigmoid, which is 1/1 plus e to the power minus y hat, is not symmetric around the origin. So what we have seen is कि यहाँ अगर 1 है वैल्यू और -1 है तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा. अगर 2 है और -2 है तो these will be simply reflections, symmetric around the origin. जैसा origin से ऊपर है वैसा ही नीचे है. As above, so below. यहाँ जो है it is all above the axis, तो ये symmetric नहीं है. So only sigmoid is the function which is not symmetric around the origin. अब ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, अभी तक हमने 3 चीजें देखी हैं. वन वाज प्योर लिनियर ट्रांसफॉर्म, सिग्मॉइड ट्रांसफॉर्म एंड tan hyperbolic. These are all given a common name and they are called the activation functions. All these are activation functions. Why called activation? कि या ये आपको yes में आंसर देंगे या no में. Anything above this, ये जो ऊपर था, this is class A जो हम शुरू में एग्जांपल देख रहे थे, and below this will be class B. So these activation functions allow us to convert the real value into discrete. जी, is it clear to you? हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ सर. जी. हमारे जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जहाँ पे सिग्मॉइड यूज हुआ होगा तो वो सर ऊपर वाली स्लोप है ना, जो ऊपर वाला सर आपने बताया है. देखिए मैंने आपको भी बता दिया कि जो लफ्ज है ना सिग्मॉइड, जी सर. उसका अगर आप लैटिन में मतलब देखें तो इट इज स्नेक लाइक. यस सर. तो जितने भी आपको ये कर्व इस तरह के नजर आ रहे हैं ना, जी सर. ये लेटे हुए ऐस की तरह के, ये सांप की तरह होते हैं. क्योंकि अगर आप इसको यहाँ गोल गोल बना लें और यहाँ इसका मुंह बना लें तो ये सांप बन जाता है. जी सर. ऑलराइट, जी ये आपने याद रखना है. इवन जी सर. आपका जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, दिस इज एस, समेशन Yes. से निकला हुआ है. बिल्कुल सर ऐसे ही है. Sigmoid is a family of functions having this shape. अब उसमें से जो sigmoid commonly हम नाम यूज कर लेते हैं, it is for this function. लेकिन बेहतर ये होगा हमेशा आपने एग्जैक्ट फंक्शन लिखना है कि कौन सा आप रेफर कर रहे हैं. 1/1 plus e to the power minus x भी इसको लिख देते हैं. जो भी वेरिएबल एज आउटपुट आपने यूज किया था वो यहाँ लिखेंगे. Always make sure that you specify the exact function. दोनों हम यूज कर सकते हैं. अगर हमें 0/1 चाहिए आंसर, जी एज एन आउटपुट या इनपुट, किस चीज का? ये भी आपने कहा ना 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, जो भी वेरिएबल आपने आउटपुट के लिए यूज किया हो. यहाँ यहाँ ये आउटपुट, ये वाली आउटपुट, अच्छा.
ये जो फंक्शन है ऊपर, इसकी आउटपुट, ठीक ठीक ठीक। ये वाली जो आउटपुट है, इट विल बिकम द इनपुट फॉर द नेक्स्ट थिंग। यस मैं इसको भी ना ड्रॉ कर देता हूँ नीचे, ताकि ये इनपुट आउटपुट वाला भी आपको क्लियर हो जाए। व्हाट हैपेंस इज, अब ये वो टर्मिनोलॉजी है वो जो हम लिखते आए हैं। सर, ये मिडिल वैल्यू के लिए आपने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी कि 0.5 और 0 के लिए? ये यहाँ पे, 0, ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली यहीं। कंफ्यूजन पॉइंट है, यहाँ आप डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक। यू कैन नॉट टेक ए डिसीजन एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, क्योंकि ना ये ए में है ना ये बी में। लेकिन सेम अगर सेम टेन हाइपरबोलिक फंक्शन में जिधर अगर यस, 0 पे आते तो 0 है। यस, ओके। फर्क सिर्फ ये है कि जो ये वाला सिग्मोइड है, ये जो हमारे लेक्चर के हिसाब से सिग्मोइड है, इसमें जब y was 0, z was giving us 0.5। tan hyperbolic जो है उसमें when y is 0, z also gives us 0। ठीक हो गया, तो वो कंफ्यूजन निकल जाती है। सर जी मोस्टली एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्मॉइड ही लिखा होता है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाला फंक्शन यूज हुआ है? 99% जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ये वाला यूज किया होता है, लेकिन सर क्योंकि रिजल्ट इसका तो टैन के डेरिवेटिव ज्यादा लेना अच्छे आसान है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, इसका डेरिवेटिव आसान है। हैं। जी सर ठीक। और डेरिवेटिव आसान होने का मतलब है कि बैक प्रोपेगेशन में आपको डेरिवेटिव चाहिए। जी सर मैं समझ गया वो बात, इसीलिए। यस, जी सर ठीक। ओके। तो हमने कहा कि फीचर एक्स आ गया, इसको हमने लीनियर रिग्रेशन किया, हमारे पास ये आ गया। इसे हमने एक्टिवेशन किया, तो हमारे पास ये आ गया। दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव यूज्ड। दिस इज द डिस्क्रीट आउटपुट एंड दिस इज सम रियल नंबर। ये तस्वीर आपने नहीं भूलनी। हमारे सारे लेक्चर्स में आई विल यूज दिस नोमेनक्लेचर। एक्स जब भी आएगा वो फीचर्स होंगे, वाई हैट या वाई आएगा तो वो दरमियान में कोई चीज है, इंटरमीडिएट आउटपुट, और फाइनल आउटपुट के लिए आई एम यूजिंग जेड। ऑलराइट, बुक में फर्क हो तो उसको सुकून से, इत्मीनान से इसमें कन्वर्ट कर लें। डू नॉट कंफ्यूज इट। So sigmoid is the only one which is not symmetric around the origin. अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जी कई दफा W पे छोटा सा ट्रांसपोज लिखा होता है, वो क्यों लिखा होता है? ये इधर मैं आपको समझा देता हूं वो क्यों लिखा होता है। ये ऐसे नहीं ड्रॉ करता, करना चाहिए वैसे, इसको नहीं कर रहा। सर सर एक क्वेश्चन है। करें करें। सर सिग्मॉइड वाली ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेकंड फंक्शन हमने टेन हाइपरबोलिक वाला यूज किया, इसे जब यस, हमें मोर डेफिनेट वैल्यू चाहिए तब हम इसे यूज करते हैं। नहीं, जब ये हमें प्लीज। 0 पे 0 चाहिए, ओके। जब लेकिन हमें सर लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए तो हम इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। यस, आइदर ऑफ दीज। लेकिन सिंपल हम ये वाई देखेंगे, ऐड की जगह हमने वो ऊपर वाली इक्वेशन लिख देनी है, वो जिसमें अपने वेट्स वगैरह ऐड करके, और हम इस तरह हमारी आउट प्रिडिक्शन आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, और उसको हम क्लासिफाई कर देंगे कि इतने परसेंट या ये वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन किया था कि मनान, आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रीजन के W में छोटा सा t लिखा होता है। हाँ जी। अब ये गौर से देखते जाएं, ये x1 x2 3 4 जो है, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, और ये एक बन जाएगा वेक्टर। कर सकते हैं?
हाँ जी यस और नो? हाँ जी हाँ जी। अब जब W से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप अगर मैं इसको लिख दूं अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस, ठीक ठीक ठीक। गॉट इट। जी जी सर, समझ आ आपने इसको ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों रोज को कर देंगे तो इनर डायमेंशंस नहीं मैच होंगी। हाँ जी, ठीक हो गया। ऑल राइट। ठीक है सर। सर यानी कि W और X को दोनों में से एक का वो ट्रांसपोज लेना लाजमी है। अल्लामा, ये तो आपने बड़ी अजीब सी सवाल कर दिया है। लेट सपोज ये हैं 4 into 1, ठीक है, एक रो है और उसमें 4 है, ठीक हो गया। और ये हमने क्या किया, 4 रोज इंटू 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 रो इंटू 4। इसका आंसर क्या आएगा? 16। क्या चीज? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली बात हो रही है। एक मैट्रिक्स है 4/1 का, ये वाला, और एक मैट्रिक्स है 1/4 का, ये वाला। आंसर क्या आएगा? 16 सर। यस, नो, ओ खुदा का खौफ करें, हाँ, सर 4/4 1 आएगा। का एक सर मैट्रिक्स 4 आएगा। बाय 4 का मैट्रिक्स होगा सर। हमें एक आंसर चाहिए, वी नीड वन स्केलर आंसर। ये मैं अगले पेज पे आपको करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये आई डोंट नो आप क्यों इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, डरा दिया आपने एकदम मुझे। सर ये मल्टीपल फीचर्स जिसमें होते थे लीनियर रिग्रेशन में जब हम किया था तब भी उसके शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखते थे। जनाब एक बिल्कुल, यू आर ट्रांसफॉर्म की। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। अब आप देखें कि आपको जो डेटा सेट मिला था, एक्सेल में उसको ओपन करें या कहीं करें, आपको एक रो मिलती है जिसमें लिखा होता है दिस इज रफ पेज। ये मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा। X1, X2, X4, ये हमारे पास एक ऐसे बना होगा। और इस तरह के आगे आपके पास जो है ना वो 150 सैंपल्स हैं। N is 150। ये आयरिस फ्लावर के। जब हमारे पास वेट होगा, वेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए वेक्टर। जो W बनेगा, W भी इसी शेप का होगा, क्योंकि 4 हमारे पास M आने। चले आप W को छोड़ दें, M की बात कर लें। M1, M2, M3, M4। ऑल राइट। अब क्या करना है कि इसका आंसर जो है, हमें इसमें प्लस B ऐड होना है जो कि एक स्केलर है। आंसर हमें चाहिए 1/1। इसका साइज क्या बन रहा है? दिस इज 4 रोज, 4 रोज है। और यहां क्या है? ये भी 4 रोज है। यस और नो? हेलो? यस सर, 4 रोज है, 4 कॉलम दोनों ही हैं 4। ये हम कह देते हैं मैट्रिक्स है, इसको एम ही लिखते हैं। अब आप लोगों ने ऐसा परेशान किया है, ये कैपिटल एम है और ये कैपिटल एक्स है। तो अगर मैं लिखूं m इंटू एक्स, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इनर डायमेंशंस डू नॉट मैच। देयरफॉर व्हाट आई हैव टू डू इज m ट्रांसपोज x। अब ये क्या होगा? सबसे पहले ये ट्रांसपोज हो जाएगा और इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। दिस इज द m ट्रांसपोज। तो m1, m2, m3, m4। और इसका आंसर क्या बनेगा? m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, m3 इंटू x3, m4 इंटू x4। लिहाजा आपको ये ट्रांसपोज चाहिए। अब इसकी जो है साइज क्या बनता है? 1/4। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनर डायमेंशंस मस्ट मैच, विच मींस ये वाला बन गया हमारे पास ट्रांसपोज है। ये 1/4 मल्टीप्लाइड विद 4/1, इनर डायमेंशन
और आंसर आपके पास आ जाएगा 1 into 1, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। ये अगर आपने जान के सवाल किया है तो आप बहुत शैतान है, और अगर आपने सीरियसली सवाल किया है तो आपके लिए हम तहे दिल से दुआ गो हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके जी, सर अटेंडेंस पानी पिला दे सुहेब। पानी पिलाएं जी, पहले मीठा खाया इन्होंने मनान ने, अब पानी पिलाएं। ऑल राइट, सो अटेंडेंस कौन है आप? अनीका। ओके जी, वी हैव गॉट लास्ट 10 मिनट्स। सो आप लास्ट 10 मिनट्स में कहाँ से आई हैं? नहीं सर मैंने क्लास ली है पूरी, पर अटेंडेंस के बाद मैं ज्वाइन किया है तो मुझे आइडिया नहीं है सर। मैंने ली है क्लास। हाँ ठीक है, ठीक है, 520। ओके ओके, डन हो गया। लेट्स गो बैक टू दी सर डिस्कशन। मेरी भी मार्क कर दिए 0586। नाम क्या है आपका? निम्रा। ओके, 31 प्रेजेंट हो गए। सर जो All हमने right. पर एंट्रोपी वाला पार्ट किया था सर, हाँ जी, सर वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? अभी मैं उस पर आने लगा हूँ। आप लोग अटेंडेंस ही लगवाते जा रहे हैं, उस तरफ आने नहीं दे रहे। ओके ओके जी, सो वी आर गोइंग टू डू वन एग्जाम्पल। लेट मी लॉग आउट। अब मैंने लॉग आउट कर दिया अटेंडेंस का, नो फर्दर अटेंडेंस। शुक्र है। ओके जी, ये जो हमने अभी बाद में किया है, दिस इज फॉर योर नॉलेज। ये आपको आना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने मेरे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, सो यू शुड नो इट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज discuss one example of the entropy and other things. So cross entropy हम calculate करेंगे. Suppose we have taken some values of features. अब मैंने आपको बताया था आयरिस फ्लावर के कर लें, कैट्स एंड डॉग्स के कर लें। एक फीचर x1 कोई एक पकड़ लेते हैं हम, एंड वी से दैट इट इज, ये मैंने फीचर्स एग्जांपल के लिए कॉपी किए हुए हैं, सो दीज आर नॉट कंपल्सरी, आपको कुछ और भी मिल सकता है। So let's suppose we have this kind of a feature vector. Somebody has given us these data और उसने ये लेबल किया है कि this sample, and this sample, these belong to class A, और ये जो हैं these belong to class B. All right. If you look at this example from some other sources, तो ग्रीन और रेड आपको नजर आएगा, मैंने ए और बी कह दिया। इट मीन्स द सेम थिंग। Now what we have to do is devise a loss function which will allow us to see whether we are doing good or we are not doing good. So the idea is to devise a loss function
which gives higher values with more misclassifications. Okay, so this is the idea. इसको हमने लेके चलना है and we are going to work it out. So what we do is we train a classifier. हमने इसका weight matrix कोई निकाल लिया and we got some results out of those. And what we did was found the distribution. I'm using the word distribution of the data items. माइनस ये 0 आ गया, यहाँ -1, -2, -3, 1, 2, 3. These are the values. So we got first data sample which is -2.2 यहाँ है. We have got the second data sample at -1.4 इधर करके, और this is 0.2. And then we have the other samples -0.8. Then we have 0.4, 0.8, 0.4, 0.8, 1.2. Oh, ये आगे बन गया, doesn't matter. उसके बाद है जी 2.2, 2.9, and then 4.6. So this is how we have done it. Now these are the positive samples or the class B, and these are the negative samples or class A. Let's assume that you have trained a classifier कि जब फीचर की वैल्यू 0 होगी तो it will give a 0, इससे ऊपर it will be like this, इससे नीचे it will be like this. ये थोड़ा सा दूर हो गया इससे, otherwise it will be very very close to these answers. Now the interesting thing is कि ये जो हमने फंक्शन यूज किया है sigmoid, it has given us the probability that a particular sample is going to be above this or is it below it. In other words, the sigmoid gives us a probability that what are the chances that this sample belongs to the class of interest or the positive class. यहाँ अगर आप देखें तो it is very very close to 0. यहाँ ये 0 आ जाता है and this is the 1. Sigmoid अभी आप थोड़ी देर पहले देख के आए हैं. This was the, किधर गया sigmoid? ये आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है ये sigmoid, you have seen it. So the question is, what is the probability that this belongs to class A or the other class? If this axis is labeled as the probability, then we can say that this has a higher possibility, this has a high possibility, ये कम होती जा रही है, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, and this has a lower possibility. Whereas if we look at the other class, और इसको हम यहाँ से ले आते हैं 1 minus the probability, this is 1 minus the probability and again 1 minus the probability.
So we can say that the probability of this sample to be positive is very high as compared to ये वाला जो sample है, it has got a higher probability of being classified as positive as compared to this sample which has got comparatively lower probabilities. टाइम वैसे आपका हो गया हुआ है। सर वो तो हम लोग वैल्यूज देख के भी बता सकते हैं ना, ग्राफ अगर ना भी बनाए तो वैल्यूज देख के भी हमें अंदाजा हो जाता है कि बी वाले में 4.6 मतलब कि इसकी ज्यादा बनेगी और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसमें -2.2 है। वेरी गुड। लेकिन अगर उसमें आपका क्वेश्चन आ जाए ये जो मैंने सामने बनाया हुआ है इनमें, अब आप क्या करेंगे? ये वाला जो तो सर ये इसमें -1.4 हाइयर आ जाएगी ना, मतलब कि सब ज्यादा प्रोबेबिलिटी -1.4 की होगी। नहीं, 1.4 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दैट इट बिलोंग्स नेगेटिव में सबसे हाईएस्ट इसकी जा रही है। इसका क्या होगा? ए वाले का क्या होगा? ये वाला सर 0.2 इसकी कम होगी जरूर, कम होगी। जी सर। यस, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपका ओके क्या ओके पॉइंट? ठीक है सर, समझ लग गई है वो, मैं भी यही बात कह रहा था सर। हाँ एग्जैक्टली, लुकिंग एट दिस वैल्यूज, बट द कंफ्यूजिंग पॉइंट इज कि अगर इन दो वैल्यूज को आप कंपेयर करें, इन दो को देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सा वाला जो है नेगेटिव की साइड पे हमेशा बी होगा या पॉजिटिव की साइड पे हमेशा ए होगा, या नेगेटिव की साइड पे ए होगा और पॉजिटिव की साइड पे बी होगा। ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, सो if we look at these, then what we are going to do is calculate the probability। ये हमने probability निकाल ली है। MATLAB में अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि how these probabilities are calculated for all the samples। We have got 10 samples, therefore we will see that एक और point which you must remember, वो जो हमारे पास एक ग्राफ बना था और आप में से किसी ने पूछा था that how did we get the graph from 0 to 1 and 0 to 1 in the form of a curve. Now I am referring to this graph that we have here. सर प्रोबेबिलिटी के लिए फिर वही फंक्शन यूज करेंगे ना, इस या आइदर सिग्मॉइड और वो tan हाइपर। अभी दो एक डेफिनेशन रहती हैं, जस्ट वेट फॉर ए कपल ऑफ मोर मिनट्स। 5 मिनट के अंदर आज ये जितना होता है करके, अदरवाइज वी विल dedicate next lecture for actual calculations. All right, so if this is the probability of the variable, कोई भी variable x, then if we take the log of the probability, log of this probability, और उसको हम कर लें negative, so this is the negative log loss। If the probability is 1, what is the log of 1? ये डेसिमल 10 बेस लॉग है। व्हाट इज द लॉग ऑफ 1? सर दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, व्हाट इज द लॉग ऑफ 1? सर 0। वेरी गुड, इट इज 0। सो देयर इज नो डिफरेंस हियर। ये लॉग लॉस वाला फंक्शन आ गया। और जैसे ही हम इसको पीछे लेके आएंगे, व्हाट इज द लॉग ऑफ 0.1? ये भी आपको आइडिया हो जाएगा वैल्यूज कहां जाती हैं। व्हाट इज द लॉग ऑफ 0.1? और उसको नेगेटिव भी -1। करना। जी सर log of 0.1। हाँ जी, सर -1 आ रहा है। -1। और
1 से ज्यादा आना चाहिए था। ये नेगेटिव लग जाएगा तो वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। ऑल राइट, अब 0.2 का करें। व्हाट इज द लॉग ऑफ सर माइनस 0.69। 0.69 यहां करके। अब करें सर माइनस 0.69। माइनस होगा, लेकिन ये वाला जो माइनस यहां लगा हुआ है ये इसको प्लस कर देगा ना। अब करें 0.05 का, ये लास्ट कैलकुलेशन है अभी के लिए। 0.05 सर माइनस 1.30। 1.30 तो ये इससे भी ऊपर कहीं चला जाएगा, और आपने ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आंसर ही आएगा हमेशा। यू विल सी दैट द लॉग लॉस इज लाइक दिस। ठीक हो गया? तो ये सर ये कौन सी log और p ऑफ x, सर ये दोबारा ये समझ लग गई है log लॉस का जो आप ये ग्राफ बना रहे हैं, इसको आप रिलेट इसके साथ ऊपर वाली ग्राफ के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं समझ लगी, ये शायद मिस कर गया हूं मैं। ये ऊपर वाला ग्राफ एक अलग चीज है। ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये वाला कैसे निकला था। एरर अगर हम कैलकुलेट करें एज लॉग लॉस, तो ये जो 0 और 1 के दरमियान ये फिर रहा था, ये कैसे फिर रहा था। नाउ कमिंग बैक टू दी ओके हो गया सर। कमिंग बैक हियर, कि हमने ये लॉग लॉस देख लिया और ये सारा कुछ देख लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द बेनिफिट ऑफ लॉग लॉस। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी और हमारे एक्चुअल दोनों में मैच है, if they have match, then the error will be small, otherwise the error is going to be large. गौर से देखें, as the predicted probability, ये वाली predicted probability of the class becomes smaller. इसका क्या मतलब है? प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ये वाला जो है, अगर ये छोटी वैल्यू देगा आपको, 0.1 देगा, then the loss is going to be a large value. Then log loss gives a larger value. हाँ जी, अब आप ये देखें, if the probability is high, probability 1 के करीब है, the probability goes from 0 to 1. If the probability is close to 1, you get very little loss, 0 हो गया. If the probability is somewhere in between, हमने 0.1 देखा, let's suppose this is 0.1, then the loss is quite high, जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया था और यहां करके वैल्यू आई थी. If the probability is even smaller, इससे भी नीचे आ जाती है, तो you will get a very very high error. So the relationship between this table, ये जो हमने किया है, और ये जो है, these are the predicted probabilities and this is the log loss. Predicted probabilities over here and the log loss over here. जी, अब आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? सर मैं थोड़ा घूम गया हूँ इस चीज में ना, मतलब घूम गया हूँ उस चीज में, ये एक दफा रिपीट कर दे। नहीं, अभी रिपीट नहीं हो सकता, अभी सिंपल इसको जो है हमने खत्म करना है आज. So what we are going to do is calculate the log loss of each of these values.
लेट्स सपोज हमारे पास 10 सैंपल थे, जो हमने ऊपर ये 10 लिखे हुए हैं, एंड दी लॉसेस वर लाइक दीज। इनको हम प्रोबेबिलिटीज को कन्वर्ट करेंगे इनटू लॉग लॉस। सबसे पहला वाला जो है, इसकी वैल्यू जो है, it does not match, the probability is very very less, therefore सर एक क्वेश्चन आया था कि वो ऊपर वाली वैल्यूज जो हम लोग ऊपर के जो ग्राफ और ये जो लॉग लॉस ग्राफ है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएंगी, हम कह सकते हैं? कौन सा वाला ग्राफ? सर ये जो मतलब कि वैल्यूज का आपने बताया कि एरर ज्यादा होगा, मतलब कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो ग्राफ में जो एरर होगा लॉग लॉस में वो कम आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू पॉज इट हियर, इसको यहीं सेव करते हैं, एंड लेट मी शो इट टू यू इन मैटलैब। जस्ट वेट फॉर वन मोमेंट, मैं इसकी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। आपको ना असल में ये, यू हैव नॉट येट डन द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। Okay, जी, I hope you can see MATLAB. और इसमें I'm just going to quickly use the NPR tool, which is the built-in thing. ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, you can use it afterwards. Load example data set, और इसमें हम I need a binary classification, so I'm going to use this cancer data set. Binary का मतलब है या कैंसर है और the cancer is not there. इसको import कर लिया, cancer inputs and cancer targets, and then I'm just going to quickly use a built-in system and automatically get it trained. ये ट्रेन हो चुका है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, we will see that later on. On the last screen we will have the outputs of this simple experiment. इसको हमने फिनिश करा दिया, इसको बंद कर दिया. All right, now I'm going to show you the targets. और टारगेट में से, वेरी गुड, ये वाला जो है, ये लाइन मैं निकाल देता हूं। इसका क्या मतलब है, दैट सैंपल नंबर 1 वाज 1, सैंपल नंबर 4 वाज 0, सैंपल नंबर 7 वाज 0। ये आपको भी नजर आ रहा होगा। सिमिलरली द आउटपुट, इसमें से भी मैं ये वाला निकाल देता हूं, सेकंड रो मैंने निकाल दी। नाउ सैंपल नंबर 4 in this case was 0. Sample number 4 over here is 0.05. Probability of sample 4 having cancer is 0.05. और डॉक्टर ने हमें ये बताया हुआ था कि सैंपल नंबर 4 is not cancer. Probability of sample number 6 क्या होनी चाहिए? डॉक्टर ने कहा था it is cancer. For sample number 6 it is 0.99. A very high probability. किसी और सैंपल पे चले जाते हैं, सैंपल नंबर 12, डॉक्टर said it is 0. The algorithm said it is 0.04. So we get probabilities as the answers. जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हमने जो अप्लाई किया करेंगे, some weights have been trained, something has been done. मैंने आपको ये पहले भी दिखाए थे, यहां दोबारा आपको दिखा देता हूं, net dot input weights, and you will see, sorry, this is the double, these are the weights. ये weights estimate हो चुके हैं, इन्हीं में से 4 की एग्जांपल मैंने आपको भी लेक्चर में दी है. This has already been done, but we are not going to use these today. ये next time देखेंगे. What you have to consider is that if the expert said, ये 22 नंबर सैंपल में एक्सपर्ट ने कहा 0, and your algorithm said 0.05, a very small probability.
सैंपल नंबर 21 में डॉक्टर ने कहा 0. योर एल्गोरिथम सेड 3.7 into 10 raised to power minus 5, a very small probability. Now coming back to the same screen. When this is the sample value 2.2, उसकी probability नहीं थी. This is just the, ये जो 2.2 है ये feature की value है. These are all features, the values of the feature x. इसे convert किया using some algorithm and we get these probability values. ये अभी मैंने आपको एक रो दिखाई है, गलती होगी उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं. So let us do that. कि ये मैं पेस्ट करने लगा हूं. So you will now have the actual values. ये हैं जी 4 सैंपल्स और आपने खराब करा दिया इसको. बड़े इत्मीनान से इसको करना पड़ता है. ओके जी, दीज आर दी सैंपल्स. कौन कौन से हैं? लेट अस नेम 18 से लेके 22 तक. सैंपल 18, 19, 20, 21, 22. जिस तरह यहां हमने सैंपल 10 लिखे हुए हैं, ये 5 सैंपल्स हैं. सो देयर इज अ 99% चांस. यहां आ रहा है 0.99, यहां आ रहा है 3.7 into 10 raised to power minus 5. This is a very small number. So small probability will give a high answer. High probability will give a smaller answer. Remember that. इसे यहाँ सेव करते हैं and we shall continue in the next lecture. आज का तो ये काफी लेंथी हो गया. So 20 extra minutes. We will continue from the next lecture and see how this whole thing adds up. Okay जी, that's it. Thank you. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ जी. सर वो मेल्स भी की थी सर, बट वो रिस्पॉन्स वगैरह वो मार्क्स वगैरह का नहीं हुआ था. वो भी मैंने किया नहीं है. Probably today or tomorrow. ठीक है सर, वो मुझे ये था कि अप्रूवल ना हो जाए ना, इस वजह से डर ही नहीं था. अभी अप्रूव नहीं किए. सर नहीं ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, अल्लाह हाफिज. लो सर. जी. सर अगर हमने इसमें अभी तो हम 2 क्लासेस के लिए काम कर रहे हैं. लेट्स सपोज के अभी कैंसर है, कैंसर नहीं है, और एक और क्लास कोई भी ऐड कर देते हैं कि कैंसर हो सकता है. लेट्स सपोज तो हाँ जी. क्या इसी के बीच में हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 से लेके अगर इतनी रेंज में अगर हमारा कंफ्यूजन पॉइंट 0.5 है तो हम अगर कर लेंगे 0 से लेके 2.5 तक की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इट मींस कि कैंसर नहीं है. अगर 2.5 से लेके 7.75 तक आती है, मतलब कि इसको 3 क्लासेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके जो नंबर आते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, वो ग्रेड लेटर में चेंज होता है. हाँ जी होता है. वो आपके सवाल का जवाब है. उसी तरह जब हम इसको यहां लिखते हैं तो इट इज द सॉफ्ट मैक्स फंक्शन. ठीक हो गया सर. ठीक हो गया. जब आपका ग्रेड बन सकता है उस पे कि 70 से 80 पे बी बनना है और 80 से ऊपर ए बनना है और 70 से नीचे क्या बनना है. सो दिस इज एग्जैक्टली what you are trying to ask. So it is multi-class classification and softmax is the answer. All right. Yes sir. Okay. Okay ji, thank you and Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज sir.